السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، اور جناب ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس سیریز کی فرمائش ہم سے کی ہے تابیہ عزیز نے۔ کہانی کا نام ہے ہم سے ہے زمانہ، مصنفہ ہے سمرہ بخاری، اور آج آپ سنیں گے اسی قسط نمبر 8۔ سویرے سے ہی گھر میں چہل پہل کا عالم تھا۔ نیلما نے سب کے کپڑے پریس کرنے کے بعد بڑی احتیاط سے کرسیوں کی بیک پر ڈالے تھے، اور اب کرسیوں پر بیٹھنے پر مکمل پابندی تھی۔ دادی نے اپنی چادر دھلوائی تھی۔ یہ مئی کی تیز دھوپ ہے، کپڑا زیادہ دیر دھوپ میں ڈالو تو رنگ خراب ہو جاتا ہے۔ سرمئی کلر کی چادر میں ابھی ہلکی نمی باقی تھی کہ لا کر لاؤنج میں صوفے پر پھیلا دی گئی تھی، تو اب صوفے پر بھی کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ تمام اہل خانہ، جس میں شبلی کی امی، نانا، ماموں اور خود شبلی بھی شامل تھے، نیچے کارپیٹ پر ہی بیٹھے تھے۔ دادی نے کل شام کو ہی نیلو سے سر میں مہندی بھی لگوائی تھی۔ عام طور پر دادی سفید بال ہی پسند کرتی تھی، لیکن آج تو بات دوسری تھی۔ ان سب کو دادی کے دور پار کے عزیز ٹھیکیدار نذیر احمد کے گھر جانا ہے۔ انہوں نے کافی عرصہ بے ایمانیوں کی بدولت خاصی دولت جمع کر لی تھی اور محل نما گھر بنایا تھا۔ آج اس گھر کی نمائش کی جا رہی تھی، یعنی تمام رشتہ دار دوپہر کے کھانے پر مدعو تھے۔ جس وقت یہ دعوت نامہ موصول ہوا تھا، شبلی کافی خوش تھا کہ زیبا بھی تو مدعو ہوگی اور اچھی خاصی ملاقات ہو جائے گی، لیکن صبح ہی فون کرنے پر پتہ چلا زیبا کو کالج اور اپنی اسٹوڈنٹس کا مستقبل زیادہ عزیز ہے بنسبت نذیر انکل کے ہاں پکنے والے قورمے اور پلاؤ کے، اس لیے وہ تشریف نہیں لے جا رہی۔ سنتے ہی شبلی کے ارمانوں پر بھی اوس پڑ گئی۔ جوادی تو پہلے ہی ٹھیکیدار کی شوباز طبیعت اور ان کی بیگم کی پھرتیلی مرچیلی طبیعت سے عاجز تھا۔ صرف شبلی کی وجہ سے شرکت مجبوری تھی۔ اب جو شبلی نہیں جا رہا، اس نے بھی گھر پر رہنے کا فیصلہ کیا۔ میں تو کہتی ہوں اب بھی اٹھ کر کپڑے بدل لو اور ہمارے ساتھ چلو۔ اے شبلی، تو ابراہیم کا سفید کرتا پاجامہ پہن لے، ذرا معتبر لگے گا، اور جواد تو بھی ڈھنگ کے کپڑے پہن لے۔ میں بتا تو سکوں، اب میرے پوتے بھی ذمہ دار انسان بن گئے ہیں۔ دادی کی بات پر نیم دراز شبلی اٹھ بیٹھا اور بولا، یعنی آپ کا مطلب ہے سفید کرتا پاجامہ پہن لینے سے انسان ذمہ دار ہو جاتا ہے؟ تو اور کیا، سفید کپڑوں کو داغ دھبوں سے بچانا ہر کسی کے بس کی بات تھوڑی ہے۔ جوادی نے سر ہلا کر بات کو آگے بڑھایا۔ میرا مطلب تھا سب کو بتاؤں گی، اپنا اسکول چلا رہے ہیں، اب تمہارے جو حلیے ہوتے ہیں لوگ تو مخول ہی سمجھیں گے نا میری بات کو، اسی لیے کہا ہے ڈھنگ کے کپڑے پہن لو۔ ہاں شبلی، پہن لے نانا ماموں کا پاجامہ، ویسے بھی آج کل نکر نما پاجامے لڑکیوں میں تو ان ہی ہیں، تو پہنے گا تو لڑکوں میں بھی ہو جائیں گے، اور ساتھ میں سفید کرتا، پاؤں میں ملتانی خصہ۔ واہ واہ! جوادی نے تصور کی آنکھ سے شبلی کو ٹخنوں سے اونچے پاجامے اور کرتے خصے میں ملبوس دیکھ لیا تھا، اور مسلسل داد دے رہا تھا۔ اے ہاں، ابراہیم کا قد تو تیرے سے چھوٹا ہے۔ اب جا کے دادی کو بھی خیال آیا، پروگرام بدلا، بولی، چل رہن دے، تو اپنا ہی کوئی ڈھنگ کا کپڑا پہن لے۔ ہمارے لیے تو کسی نے محلے کے پچھواڑے والے بازار سے بھی شاپنگ کرنا گوارا نہیں کیا، ڈھنگ کے کپڑے آخر آئیں گے کہاں سے؟ جتنے بھی کپڑے بنوا دو تم لوگ 2 ہفتے میں ناس مار لیتے ہو۔ تائی امی کی نظروں میں پرانے منظر فلم کی طرح چلنے لگے۔ دونوں نے جواب نہیں دیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد سب لوگ ابا جی کی پرانی گاڑی میں پیک ہو کر روانہ ہو گئے۔ اب گھر پر یہی دونوں تھے۔ دن کے 12 بجنے کو تھے۔ گرمی کی شدت پچھلے دنوں کے مقابلے میں آج زیادہ تھی۔ لائٹ چلی گئی تو دونوں اٹھ کر صحن میں لگے جامن کے درخت کے نیچے آ بیٹھے۔ بمشکل 10 منٹ ہی بیٹھے ہوں گے۔ جوادی نے آہ بھر کے سبز پتوں بھرے جامن کی جانب دیکھا، پھر شبلی کی طرف جو بار بار پسینہ پہنچ رہا تھا۔ دادی اپنا نیا لان کا سوٹ چھت پر پھیلا کر گئی تھی، کہہ رہی تھی بس 5 منٹ ہی اوپر ڈالنا، پھر نیچے لا کر چھاؤں میں رکھ دینا۔ میرے تو پیر میں سخت درد ہے، تم ذرا چھت پر جا کر لے آؤ۔ کیا کرتا ہے یار، اتنی گرمی میں تو پگھل جاؤں گا۔ جوادی نے انکار کے ساتھ نہ جانے کی وجہ بھی بتا دی۔ تم آئس کریم نہیں ہو کہ پگھل جاؤ گے، جاؤ جلدی لے آؤ، نیا سوٹ ہے ان کا، بڑے شوق سے بنوایا ہے۔ میرے پیر میں اس قدر درد نہ ہوتا تو میں خود جا کر لے آتا۔ اصرار کی شدت سے گھبرا کر جوادی کو اٹھنا پڑا۔ چھت پر گیا، وہاں سے جھانک کر اطلاع دی، سوٹ غائب ہے۔ 2 ہی وجوہات قابل غور ہیں، یا تو کسی پڑوسن کا دل آ گیا ہے اور وہ لے اڑی ہے، یا پھر یہ گستاخی ہوا کی ہے۔ پہلی وجہ قابل غور ہے، آس پاس کی چھتوں پر تلاش کرو، اگر کسی عورت کا سایہ بھی کسی چھت پر دکھائی دے رہا ہے تو لپک کر دبوچ لو۔ پیارے، اس وقت مارے گرمی کے میری آنکھوں کے آگے ویسے ہی کئی شکلیں بن اور بگڑ رہی ہیں۔ اچھا پھر آ جاؤ۔ جھٹ اجازت دی گئی۔ جوادی جیسے تیسے نیچے اترا اور آ کر جامن تلے بچھی چارپائی پر گر کر ہانپنے لگا۔ شبلی نے غور سے صورتحال کو دیکھا، پھر مطمئن انداز میں سر اسبات میں ہلایا اور بولا، چل کچن میں چلتے ہیں، فریج میں جو بھی پڑا ہے گرم کر کے کھاتے ہیں اور اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ تمہیں میری اماں کا تو پتہ ہے، وہ تو فریج کے ویسے ہی بڑی خلاف ہے، اور باسی سالن جمع کرنا ان کے نزدیک چول پن کی علامت ہے۔ کیا مطلب، یعنی کہ کچھ نہیں پڑا؟ تم اپنے گھر سے لے آؤ، جوادی نے مشورہ دیا۔
हमारे यहाँ तो सुबह ही अम्मी ने फ्रिज की सफाई की है, बल्कि धुलाई की है, और अब वो खालम खाली बिल्कुल नवा नकोर लग रहा है। जवाब नहीं हमारे घर वालों का। जवादी ने सर हिलाया। शिबली ने फिजा में कुछ सूंघने की कोशिश की। यार जवादी, ये जो खुशबू आ रही है, क्यास है कि इसका मरकज़ दूर नहीं। आहो यार, बल्कि लगता है बानो कुछ पुकार रही है। बस फिर तो मज़े हो गए, देखना अभी दरवाजे पर दस्तक होगी। जवादी पुरजोश हुआ। लगता है कौरमा बन रहा है, और कभी कभी साथ में बिरयानी की खुशबू भी शामिल हो जाती है। शिबली थोड़ी थोड़ी देर के बाद माहिराना तबसरा पेश कर रहा था, लेकिन जवादी अब बिल्कुल खामोश और किसी गहरी सोच में गुम था। क्या हुआ, क्या आज आलू टिंडे खाने का मूड हो रहा है? शिबली ने उसकी बेतवज्जही को नोट करके क्यास किया। हाँ, काश आज उधर आलू टिंडे ही पक रहे होते। बहुत बुरा कौरमा बनाती है क्या? ओ नहीं यार, कौरमे बिरयानियाँ कितने बड़े ख़तरे की अलामत है, तुम नहीं समझ सकते। ये तो गरीब लोग हैं, दाल सब्जी से आगे कुछ सूझता है तो बानो का छोटा भाई हमारे यहाँ पूछने आ जाता है कि थोड़ा सालन होगा तो दे दीजिए, लेकिन आज आज ये मनहूस खुशबुएँ बता रही हैं कि तूफ़ान की आमद है। शिबली ने कुछ ना समझ कर आँखें मटकाईं, लेकिन फिर फ़ौरन ही ठिठक गया। लगता है मई की चिलचिलाती धूप तुम्हारे दिमाग को लग गई है। और नहीं ओए, मेरे तो दिल को लग गई है धूप। शिबली हैरान हुआ। तुम मुसलसल मेरा सर खा रहे हो, अंदर जाओ और एक गिलास पानी लेकर आओ मेरे लिए। इस वक्त गली में चिंची रुकने की आवाज़ आई। जवादी चौकन्ना हुआ, उठा और ज़रा सा गेट खोलकर झांका। शिबली को भी तजस्सुस हुआ और पीछे जा खड़ा हुआ। जिसका डर था आखिर हो गया ना वही काम। अब के जवादी सिर्फ संजीदा था। अगर अब भी तुमने मुझे कुछ ना बताया तो मैं धूप में जाकर खड़ा हो जाऊंगा, शिबली ने धमकी दी। ओ यार, बताया तो था, बानो की खाला अपने लफंगे बेटों के साथ आ रही है। खाला लफंगे बेटे? यार, रात ही सुल्तान राही मरहूम की एक पंजाबी फिल्म देखने का उसने इत्तफाक हुआ है। बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन बार बार दिखाई जा रही थी। दुश्मनों की तरफ से खराट खवातीन और लफंगे नौजवान तांगे भर भर कर आते हैं। इधर हीरो साहब अकेले डांग लेकर इस्तकबाल को खड़े हैं, और इस्तकबाल भी ऐसा कि मैं तो देख कर देर तलक सर धुनता रहा और अश अश करता रहा। करीब चीखते चिल्लाते माफ़ी पर माफ़ी मांगते वापस भागते हैं। सुनकर जवादी की निगाहों की चमक वापस आई। बस आज से मुझे भी सुल्तान राही मरहूम का दूसरा रूप समझ लो, और इन आने वालों को तांगे में बैठे दुश्मन। कमाल है, बैठे बिठाए अच्छी भली सूरत से क्यों खार खाने लगे हो, जो सुल्तान राही का रूप अपनाने का तहैया कर लिया है। तुम्हें क्या पता, तुम कैसे समझ सकते हो? तुम्हारे प्यार की राह में कोई जालिम समाज है ही नहीं, तो इसमें तंज वाली कौन सी बात है? मैंने नहीं कहा था इधर दिल लगाओ। खैर, मैं भी इन दीवारों को गिराकर दम लूँगा। क्यों मुसलसल खतरनाक बातें कर रहे हो जवादी? दीवारों तले क्या सोना दफन है जो गिराने पर तुल गए हो? जाओ अंदर से कोई अखबार ही ले आओ, उसको हाथ का पंखा बनाकर हवा लूँ तो शायद कुछ चैन पड़े। अखबार में गर्मा गर्म खबरें होती हैं, हवा भी गर्म ही आएगी। जवादी यार, उठो और हिम्मत से काम ले। चल पड़ोस में चलते हैं, वही बहाना बहुत है कि वालदा साहिबा हमारे लिए खाने का इंतज़ाम किए बगैर ही तशरीफ़ ले गई हैं। हम पड़ोस पर हक जताने और याद दिलाने आए हैं। हाँ हाँ, ठीक कहता है तू। जवादी भी उठ खड़ा हुआ। पड़ोसी के दरवाजे के साथ ही उनकी बैठक भी थी, जिसकी खुली खिड़की पर पर्दा लहरा रहा था। यूँ निगाह अंदर जाने से कासिर थी, अलबत्ता कान कहकहों और बातों की आवाज़ें मुसलसल सुन रहे थे। देख लो खाला जी को कैसे चहचहा रही हैं। जवादी को फिर गुस्सा आया। जाहिर है उनकी बेटी का डोला उठने की उम्मीद बंधी है, चहचहाएंगी नहीं। शिबली ने लापरवाही दिखाई। मैं उस डोले को आग लगा दूंगा। फिलहाल मुंह बंद रखो। उनके दरवाजे पर खड़े होकर सुनहरे ख्यालात का इजहार फरमाओगे तो खाना नहीं मिलेगा। 2 बार दस्तक देने के बाद दरवाज़ा बानो के 10 साला भाई साहब ने खोला। दरवाज़ा खुलने से पहले ही वो बतीसी निकाले हुए थे, सो जो दरवाज़ा खुला तो वही तस्वीर उनके सामने आई। तुम्हें पता था हम आए हैं जो इतने खुश हो रहे हो? नहीं जी, आपको नहीं पता, हमारे घर मेहमान आए हैं, बड़ी दूर से, और बड़ी सौगातें लाए हैं। आइए ना, अंदर आ जाइए। वो कमरे जिसे बानो के यहाँ बैठक कहा जाता था उसी में चले आए। बैठक आज वाकई बैठक थी कि यहाँ वहाँ सब बैठे थे। उन्होंने सलाम किया तो उन्हें भी बैठने को कहा गया। ये पड़ोसी हैं, बड़ा प्यार है हमारे घरों में। बानो की वालदा यानी खाला मोहतरमा ने कुछ ज़्यादा ही चहक कर तारुफ करवाया। मेहमानों ने भी बड़ी मोहब्बत और अपनाइयत के साथ देखा, जहाँ मुकम्मल बेगानगी ही बेगानगी थी। ये जवाद है, हेड मास्टर साहब का बेटा, और ये तो पूरा घर ही पढ़ा लिखा है। दोनों लड़के भी स्कूल चला रहे हैं। इतनी तारीफ़ें तो लड़की देते हुए इधर नज़र क्यों नहीं पड़ी? जवादी ने जलकर सोचा और चेहरे पर बेजारी का तासर मज़ीद गहरा हो गया। आहो, मैं तो ये देखते ही समझ गई कि पढ़े लिखे लोग हैं, जब भी तो ऊपर से हैं। हमारे जैसे होते तो खुली बाहों से ना मिलते भला। खातून ख्यालात का इजहार करने में खुली डुली थी। वैसे भी उन लड़कों की तरफ से यूँ नज़रअंदाज किया जाना मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को यकीनन तौहीन ही महसूस हुई थी। हमारे शहर में तो एक घर का मेहमान पूरे मोहल्ले का मेहमान होता है। एक जिगर गोशे ने भी उन्हें नज़रों में रख कर तंज किया और आइंदा के लिए उनकी लिस्ट में अपना नाम लिखवा लिया। हमारे शहर की तो क्या ही बात है, हम तो बड़ा ही प्यार करने वाले लोग हैं।
बड़े शहर वाले मोहब्बत की इस सवाद को क्या समझें। जवादी को लगा ये खातून सिर्फ उसे सुनाने के लिए ही प्यार मोहब्बत जैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं, ताव दिला रही हैं। करना है जो कर लो, हम तो लड़की लेकर ही जाएंगे। तो आप लोग अपने शहर से इसी वजह से निकाले गए होंगे कि वहाँ सारे प्यार मोहब्बत करने वाले बसते थे। सवाल करते वक्त शिबली की मासूमियत काबिले दीद थी। आय हाय, हम क्यों निकाले जाते भला, हम तो चंद दिन के लिए इधर आए हैं, फिर वापस अपने शहर चले ही जाएंगे। बराबर बैठे अंदर वाली साइड पर खुलने वाली खिड़की से झांकने की कोशिश करते साहबजादे को टहूका दिया तो वो गिरते गिरते बचे। देख के खाला जी, एक तो बेटे आपके सारे के सारे ऐश्वर्या बच्चन की तरह स्मार्ट हैं। शिवली ने लपक कर बड़े ज़ोर से लड़के को थाम लिया। ओ छोड़ ओए, ये किससे मिला रहे हो जनानियों से? हम नहीं मिलते विलते, हवाला देना है तो किसी मर्द का दो। हाँ, तुम क्या कह रही थी अम्मा? कुछ नहीं, पता नहीं ध्यान की तरह माँ की कभी सुनी है जो अब सुनोगे? ये तो मैं लिख के देने को तैयार हूँ, करतूत आगे आए हैं। ओ छड्डो वी अम्मा, मैं ज़रा पानी पियाऊँ, प्यास लगी है। बैठिए, मंगवा देता हूँ। शिबली तनकर दरवाजे में खड़ा हो गया। आप क्यों तकलीफ़ करते हैं, मैं ले आता हूँ उसे, मेहमान नवाजी भाई नहीं। जवादी ने यहीं से बानो के छोटे भाई को पुकारा और पानी का जग लाने को कहा। ज़रा देर बाद पानी हाजिर था। लो जी, पूरा जग मंगवा दिया है, अब किसी को अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शिबली गिलास भर भर कर सबको पिलाने लगा। जवादी ने मौका देखकर अंदर की राह ली। इस घर में कोई पर्दा तो नहीं था, बचपन से इस घर में आना जाना था, लेकिन जवान होने पर एक पाबंदी खुद ब खुद ही आयद कर ली थी। अब वो कभी बेतकल्लुफ़ी से उनके यहाँ नहीं आता था, लेकिन आज तो बात ही दूसरी थी। उठा और सीधा किचन में चला आया, जहाँ बानो तनदही से खाने बनाने में लगी हुई थी। हाँ हाँ, पकाओ पकाओ, खिलाओ उन्हें, रास्ता बनाओ उनके दिलों तक। मैं तो समझ रहा था तुम आठ आठ आंसू बहाने खीर में मिर्ची और कोफ्तों में चीनी डाल रही होगी, पर यहाँ तो मैंने कस्टर्ड बनाया है और कौरमा, खीर और कोफ्ते तो बनाए ही नहीं। वाह रे ए मासूमियत, तो अब बना लो, किसने रोका है? अंदाज काट खाने वाला था। बानो समझी नहीं, कुछ देर उसका बिगड़ा मूड देखती रही, फिर धीरे से बोली, मुझे क्या पता था आपका दिल खीर और कोफ्तों के लिए चाह रहा है, कल बना दूंगी। हाँ, जैसे तुम ये सब मेरे लिए ही तो एहतमाम कर रही हो ना। अंदाज मज़ीद तंजिया हुआ। वो मेहमान आए हैं ना कुछ तो बनाना ही था। जवादी, आहिस्तगी से शिबली ने पुकारा। उसे पलटना पड़ा। यार पागल तो नहीं हो गया? किचन में पहुंच गया लड़की के पास। वो बैरूनी दरवाजे के करीब खड़ा था। जो ही जवादी करीब पहुंचा, धीमी आवाज़ से डांटने लगा। जवादी कुछ सोचकर चौंका। यार ख्वामखा तुमने बुला लिया। अच्छा है ना, सब देखे, सबको पता चले लड़की का तो पड़ोसियों के लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। क्यों? बानो के अब्बा को हार्ट अटैक करवाने का इरादा है। तुम्हें पता तो है वो बड़ा गैरतमंद है। मुझे यकीन है हार्ट अटैक से पहले वो बानो पर अटैक करेगा, इसे मार कर ही वफात पाएगा। हाँ चचा, है तो कुछ ऐसे ही मिजाज का। और ये बानो की वालदा यानी खाला जी, ये कौन सा कम है? मेरा ख्याल है ये खुद ही लड़की का गला घोंट देंगी। जवादी ने भी इत्तेफाक करने के साथ मजीद खदशे का भी इजहार किया। तो क्या फिर तुम बानो की ज़िंदगी नहीं चाहते? चलो घर चलते हैं। जवादी बेहद उदास था। वे पुत्र जवादी, शिबली बैठो ना, अब रोटी हमारे साथ खाकर ही घर जाना। खाला की मोहब्बतें बेमिसाल थी। हाथ तक, लेकिन दिल खुला था। जवादी तो शायद इनकार कर देता, लेकिन शिबली झट राजी हो गया। दोनों फिर बैठक में आ बैठे। खैर से कितना कमा लेते हो दोनों? खातून ने अब के अंदाज बदला। 40-50 तो कहीं नहीं गए। हैं? अच्छा। आंखें फैलीं, फिर बाछें। खुद से 1000 का इजाफा जो किया था। कितने सादा मिजाज और नेक शरीफ हो। आजकल के लड़के तो बड़े ही ओछे होते हैं। मैं बंदे की बड़ी पहचान रखती हूँ, देखते ही समझ गई थी। हो ख़ानदानी ना। वैसे इनके घर क्या करने आते हो? इधर तो तुम्हारे जोड़ का एक भी नहीं। मोहतरमा किस तरह हेर फेर कर अपने मतलब पर ला रही हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखा। हाँ जी, मतलब का तो एक भी नहीं, बल्कि सच कहूँ तो आपके मतलब का भी कोई नहीं है। आप तो मुझे अपनी सगी फुप्पी की तरह लग रही हैं। जवादी जगह से उठा और उनके पहलों में जा बैठा कि मौका गनीमत था। खाला जी इस वक्त बानो को कुछ हदायतें देने किचन की तरफ गई थी। नहीं, मैं तो इस तरह कह रही थी कि इधर ना कोई इतना पैसे वाला है, ना पढ़ा लिखा। बाकी ये तो मैं जानती हूँ, ये घर मोहब्बतों में कंजूस नहीं है। चलो जी, बात ही ख़त्म। खातून के ख्यालात तो बेहतरीन थे। हाँ हाँ, दूर के ढोल सुहाने। शिबली जताने के अंदाज में हंसा। हाँ जी, ये तो ठीक कहा है भाईजान आपने। कसमें, उधर हमारे पड़ोस में शादी थी। कुड़ियाँ रात के 12-1 बजे तक ढोलक बजाकर पता नहीं किस किस से इंतकाम लेती थी। नींदें हराम हो गई थी हमारी तो बराबर में जो घर था। और मैं यही सोचता था काश हमारा घर यहाँ से दूर होता या ये पड़ोस दूसरे मोहल्ले में बसते। बड़े साहबजादा ने शिबली से पूरा इत्तेफाक किया, मगर हैरान हुआ कि शिबली को इस इत्तेफाक से ज़रा खुशी नहीं हुई। लो जी, सब नीचे दरी पर आ जाओ, मैं दस्तरखान बिछा रही हूँ। खाला जी ने आकर ऐलान किया और मुसरत की लहर दौड़ा दी। ज़रा सी देर में सब दरी पर थे। मैंने कहा नसरीन, कुड़ियों से कहो ना, तुम क्यों लगी हुई हो? वो खाना ला रही हैं आपा। वैसे बड़े ही अच्छी लड़कियां हैं तुम्हारी, मेरी बानों की तरह ही काम में फुर्तीली। हाँ, बानों की तारीफ तो ज़रूर करेंगी इनके सामने। जवादी ने किलस कर पहलू बदला। फड़ो जी फड़ो, गर्म है, ज़रा एहतियात के साथ। आवाज़ और लहजा बानों का नहीं था।
निगाह उठाई, सामने 2 अजनबी लड़कियां खड़ी थीं। खूब कढ़ाई वाले कपड़े पहने हुए थीं। यकीनन यही हैं वो जिनकी तारीफ अभी खाला कर रही थी। आ जाओ नी अब तुसी सारियां, बीबानों को भी बुला लो। अच्छा अम्मी जी, पहले खाना रख तो ने, फिर बार बार उठना पड़ेगा। लड़कियां वापस हो लीं। मेरा ख्याल है मैं लड़कियों के लिए दूसरे कमरे में दस्तरखान बिछा देती हूँ। नसरीन को बानों के यहाँ आकर खाने पर एतराज़ था कि यह उनके घर की रिवायत नहीं थी। साथ में मेहमान लड़कियों का खाना भी अंदर वाले कमरे में लगा दिया गया। पकाया तो बड़ा कुछ है, पर ज़रा भी स्वाद का नहीं है। जो ही खाला पानी लेने बाहर निकली, खाने से इंसाफ करती खातून मेज़बान बच्चों से ज़रा परे होके धीरे से शिबली के कान में बोली, और शिबली के साथ साथ जवादी ने भी पुरजोर अंदाज में असबात में गर्दन हिलाई। आपने तो मेरे दिल की बात कह दी फूफी जी। असल में इनके यहाँ कहाँ ऐसे खाने बनते हैं। बेचारी ने इधर उधर से तरकीबें पढ़कर खाना बनाया होगा। हाय हाय, अफसोस का इजहार किया, फिर बोली, किसी दिन कहूँगी जमीला से तुम्हें कौरमा बनाकर खिलाए। मेरी जमीला अनीला बड़ा ही अच्छा खाना बनाती हैं। हम भी तुम्हारी तरह खाते पीते लोग हैं। ये कौरमे बिरयानियाँ हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, रोज़ ही खाते रहते हैं। फिर मैं खाला से कह देता हूँ दालें पकाएं आपके लिए, वो तो नहीं होंगी ना, स्वाद आ जाएगा। शिबली ने झट से कहा तो घबरा गई। ना दाल हम कहाँ खा सकते हैं, बस तू इस बात को यहीं छोड़ दे। कुछ ना कहना, बेचारी से दिल टूट जाएगा उसका। कैसी मक्कार औरत है खाला, इसकी बानों की सास बनाना चाहती हैं। पता नहीं किस बात का बदला ले रही हैं। मासूम से जवादी ने जज्बाती होकर हाथ में थामा ग्लास जोर से पटका। क्या हुआ? सभी ने उनकी जानिब देखा। ज़्यादा मिर्चें खा ले तो जज्बाती हो जाता है। चल शाबाशे, ये दही खा ले, इसमें मिर्चें नहीं है। शिबली ने सबकी तशफ़ी करा के उसे मशवरा दिया। मैं घर जा रहा हूँ। जवादी ने उठना चाहा। बैठो ना, अनीला से कहती हूँ चाय बनाए, चाय पीकर जाना, बड़ी ही स्वादी चाय बनाती है। इस गर्मी में चाय पी लेगा तो और भी जज्बाती हो जाएगा, जाने दें इसे। शिबली ने सलाद की प्लेट सामने रखते हुए बताया। अच्छा, गर्मी ज़्यादा लगती है? इतना कहकर हल्का सा कहकहा लगाया और फिर फरमाया, बिल्कुल मेरी अनीला की तरह। अम्मा, जवान बेटा बहन की आदत पराए लड़के से जोड़ने पर जज्बाती होकर चिल्लाया। क्या है वे, ना हर वेले काका बन के मुझे बुलाता रहा कर। ये दोनों तेरे भाई आए बैठे हैं, मिलकर प्रोग्राम बना लो, कल ही शहर की सैर को चलेंगे। वैसे भी हम यहाँ इस छोटे से घर में सड़ने के लिए थोड़ी आए हैं। अभी रास्ते में रिक्शा जिस सड़क से गुजरा था, साथ साथ नहर बहती थी, किनारे किनारे घने दरख्त, हरी हरी घास। हाय रब्बा, जी तो करता था बस यहीं उतर जाऊं, नहर में पाँव डालकर बैठूं और तरबूज खाऊं। तो फूफी जी, ये कौन सा मुश्किल है, आप तरबूज खरीद लीजिएगा, हम कल ही आपको नहर पर ले जाएंगे। शिबली ने खुशखबरी सुनाकर सबको खुश कर दिया। ये बच्चा बड़ा गुमसुम हो रहा है। फूफी जी को जवादी की चुप से तशवीश हुई। खाना खाकर ये ऐसे ही सुस्त हो जाया करता है, फिक्र ना करें, थोड़ी देर बाद फिर बोलने लगेगा। तुम लोग तो मोहल्लेदार हो, जानते होगे इनके घर के हालात कैसे जा रहे हैं। भाई जी कितना कमा लेते हैं। इनके मुंडे तो अभी छोटे हैं और फिर पढ़ने पर भी लगा दिए हैं। पता नहीं ये मशवरा किस अकल के अंधे ने दिया है इन्हें। भाई जब घर में दाने नहीं तो ऐसे बखेड़ों की क्या ज़रूरत है। और चूंकि ये मशवरा जवादी के अब्बा का था तो यकीनन पहलू बदलना तो हक बनता था। भाई हम तो अपने बड़ों से यही सुनते आए हैं, ये पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ दिमाग में खुश्की पैदा कर देती हैं, फिर बंदा किसी जोगा नहीं रहता। इसीलिए कभी किसी बच्चे पर पढ़ने के लिए दबाव नहीं डाला। हाँ, पर मेरी कुड़ियों को शौक़ था। दोनों पूरी 8-8 जमातें पढ़ गई हैं। इनका अब्बा तो जब लाड के मूड में होता है तो इन्हें प्रोफेसर पुत्र ही कहकर बुलाता है। सुबहान अल्लाह, अब्बा और अब्बा का लाड जिंदाबाद। बस कोई प्रोफेसर ये लाड ये फ़िक्रा सुन ना ले। जवादी बड़बड़ाया। यहाँ इस शहर में सैर करने वाली कौन कौन सी जगह हैं? बड़े साहबजादे ने सवाल किया, और जो कि बड़ा साहबजादा ही जवादी को सबसे ज़्यादा खटक रहा था, इसलिए जवाब देने के बजाय तपाई पर पड़ी किताब उठा ली। उन्वान था टार्जन और छनछंगलू। यकीनन ये बानों के किसी बिरादर अजीज़ की होगी। इस वक्त तो जवादी की सारी दिलचस्पियाँ उसी किताब में सिमट आई थी। बताया नहीं जी आपने? अब वो शिबली से पूछ रहा था। मकामात तो बहुत से हैं, अब ये तो अपने अपने मिजाज पर है ना। मैंने सुना है इधर मज़ार भी बहुत हैं, मेले लगते रहते हैं, वहाँ पर जलेबियाँ, कतलम्मा, कचौरियाँ बड़ी स्वादी मिलती हैं इन मज़ारों पर। फूफी जी की मालूमात पर शिबली झूम उठा और बोला, कोई ऐसे वैसे मेले समझे, ये तो शहर ही मेलों ठेलों का है। हमें भी दिखाए ना मेला, वहाँ पर मौत का कुआं भी ज़रूर होगा। लड़के बड़े खुश और पुरजोश थे। मौत के लिए कुएं पर जाने की क्या ज़रूरत है, गले में रस्सी का फंदा डालकर पंखे से लटका जा सकता है। जवादी ने किताब बंद करके समझाया था। और नहीं जी नहीं, आप समझे नहीं। हाँ, तुम पढ़ो अपनी किताब, जो मज़ा कुएं में डूब के मरने में है वो भला पंखे के साथ लटकने में कहा। शिबली ने किताब खोलकर दोबारा जवादी के हाथ में थमाते हुए कहा, नी कुड़ियों, नी जमीला अनीला किधर जाकर बैठ गई हो, इधर आओ, सैरों के प्रोग्राम बन रहे हैं। फूफी ने सहन की खिड़की खोलकर आवाज़ लगाई। जमीला अनीला के साथ साथ खाला नसरीन भी यकीनन ऐलान सुनकर ही चली आई थी। लड़कियां जितनी खुश दिखाई दे रही थीं, खाला के चेहरे पर उतनी ही परेशानी थी। आते ही बोली, ए हे, इस गर्म मौसम में सैर,
सर को लू लग जाएगी, गर्दन तोड़ बुखार हो जाएगा। नी चुप भी करो, क्यों मनहूस अल्फाज जुबान से निकालती हो? कुछ ख्याल करो, मेहमान है तुम्हारे घर में। फूफी खाला नसरीन से खफा हो गई। हम इस फैशनी शहर के रहने वाले नहीं हैं कि तपती हवा भी बर्दाश्त ना हो। हमारे घर में 8-8 घंटे लोड शेडिंग होती है, बगैर पक्खे के भी हम हंसते मुस्कुराते रहते हैं। खाला नसरीन थक हार कर खामोश हो गई, लेकिन परेशानी चेहरे से हुवैदा थी, जिसकी वजह उस वक्त लड़कों की समझ में नहीं आई। कहाँ जाएंगे अम्मा और किस वक्त जाना है? पहले से टाइम बता दो, फिर जो तैयार होने में लगते हैं तो तुम बोलने लगती हो। नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगी। ये बड़ा शहर है, हम आज शाम को नहर पर जाएंगे, रात का खाना नहर के किनारे ही खाएंगे। प्रोग्राम का ऐलान होते ही दोनों लड़कों ने नफ़ी में सर हिलाया और चिल्लाए, ये गजब ना करना फूफी, रात को वहाँ सांप बिच्छू हुकूमत करते हैं। ऐवें एक आदमी आप लोगों में से कैं हो गया तो नाम हमारे बेचारे शहर का बदनाम हो जाएगा। चलो फिर जल्दी आ जाएंगे और कल का प्रोग्राम पक्का, हम किसी उर्स में ज़रूर शिरकत करेंगे। ठीक है जी, पता करते हैं कौन कौन उर्स मनाने के मूड में है, फिर ले चलेंगे उसी मज़ार पर। और जी हमने सुना है लाहौर में खाने पीने का भी बाज़ार है, हर तरफ तरह तरह के खाने मिलते हैं, उधर तो ज़रूर जाना है। कुछ गुपलो सी अनीला ने ठिनक कर बराह रास्त जवादी से फरमाइश की थी। ए छोड़ो, भी बड़ा रश होता है वहाँ, आवारा लड़के सारी शाम उधर ही गुजारते हैं और लड़कियों को छेड़ते हैं, उधर का तो नाम ना लो। खाला नसरीन ने न जाने क्यों ऐसा बयान दिया, हालांकि वो तो आज तक उधर गई ही नहीं थी। तो हम किस लिए हैं? छेड़ने वाले का मुंह तोड़कर हाथ में पकड़ा देंगे। भाई गैरत में आ गए। खाला नसरीन आह भरकर बाहर निकली तो दोनों इस फैमिली को प्रोग्राम बनाने में मसरूफ़ छोड़कर बाहर आ गए। क्या है खाला, अब बेचारे इतनी दूर से आए हैं, थोड़ी बहुत तफरी तो हक बनता है, वापस घर ही आएंगे। तुम्हें क्या पता, कैसे बताऊं, असल में इतना पैसा कहाँ है हमारे पास। ये सैर में हमें भी साथ घसीटेंगे, फिर मेज़बान होने की वजह से खर्चा भी हमसे ही चाहेंगे। हाय रब्बा, मैं कहाँ से ये सब पूरा करूँगी। आप मत जाना, बस कोई ना कोई बहाना बना देना। वही तो मुसीबत है, बहाने बनाने कहाँ आते हैं मुझे। तो बानों को भी साथ ले जाने की बात करेंगे और बानों के अब्बा को तो ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। रिश्तेदारी अपनी। खाला, बानों को कामों में मसरूफ़ कर दिया करना। इधर ये लोग निकलने के लिए तैयार हों, उधर उसे कपड़े धोने पर लगा दें, या फिर मुर्गियों के दड़बे की सफाई भी मुफीद और तवील काम है। हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा। सच्ची तुम तो सब जानते हो क्या हाल है हमारे घर का। मेहमानदारी तो चलो ठीक है, पर ये सैर सपाटे, फिक्र ना करें, अपने शहर की लाज रखेंगे और आप पर हर्फ नहीं आने देंगे। ए खाला जी, बाथरूम किधर है? बड़े वाला साहबजादा चला आया था। बाथरूम का तो नलका ख़राब है, पानी ही नहीं आ रहा है। हमारे घर चलकर नहा लो। अच्छा, कुछ सोचा फिर इस बात में सर हिला दिया। दोनों अपने यहाँ ले आए। बाथरूम किधर है भाई? क्या सोचने लगे तुम दोनों? हाँ कुछ नहीं, इधर गेस्ट रूम है, साथ में अटैच बाथ, उधर ही घुस जाओ। जवादी ने बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया और मोहतरम गड़ाप से घुस गए। 5 मिनट जवादी ने इंतज़ार किया, उसके बाद पानी के पाइप पर लगा हैंडल बंद कर दिया। ओए भाई, पानी बंद हो गया, मैं साबुन लगा कर बैठा हूँ। मैंने कहा ओए पानी का कुछ बंदोबस्त करो, वो दरवाज़ा पीट रहा था। 10 मिनट बाद जब जिस्म पर लगा साबुन का झाग तौलिए में मुंतकिल करने के बाद नहाने की ख्वाहिश दिल में दबाकर बादल नखासा बाथरूम को खैर बात कहकर लाउंज में कदम रखा तो उन दोनों को सुल्तान रही मरहूम की फिल्म ज़ोक और शौक से देखते पाया। बड़ा स्यापा है भाई इस शहर में। क्यों भाई, अब क्या हो गया? नीम दराज शिबली तवज्जो टीवी की जानिब रखते हुए बोला। जवादी ने तो कुछ पूछने की जहमत भी नहीं फरमाई। पानी नहीं आ रहा, तौलिए से साबुन साफ करके कपड़े पहने हैं, सर में शैम्पू उसी तरह लगा हुआ है। यार कुछ इंतज़ाम करो, हजरत तो रो देने को थे। खाला नसरीन ने इतला दी है उनके यहाँ ठीक ठाक पानी आ रहा है, जाइए जाकर डूब जाइए। आखिरी जुमले पर गौर किए बगैर वो तो लपक कर खाला नसरीन के घर को चल दिए। शिबली ने जज्बात में आकर जवादी का माथा चूमा, फिर रुंधे हुए आवाज़ में बोला, 100 आशिक मरे होंगे तो आपकी पैदाइश का मनहूस वाक़या पेश आया होगा। मान गए आपको, सचमुच मान गए, तुसी ग्रेट हो। शाम को बानों का भाई बुलाने आ गए, इस इतला के साथ के मेहमान तो बिल्कुल तैयार हैं। इधर जो आए तो वाकई मेहमान तैयार और पुरजोश थे। तरबूज तो मिल जाएंगे ना? फूफी ने कुछ फिक्रमंदी के आलम में दरियाफ्त किया। फिक्र ना करें, तरबूज ना मिले तो फाल से ले लेंगे, जवादी ने अपने अंदाज में तसल्ली दी। मखौल ना करो, मेरा मतलब था नहर किनारे तरबूज ना खाए जाएं तो की फ़ायदा नहर तक जाने का। बस रहन दो अम्मा, तरबूज तो हम अपने शहर में भी खाते रहते हैं, आज तो बर्गर खाएंगे। जमीला चहकी थी। दफ़ा दूर अंग्रेज़ की बच्ची, मुझे नहीं अच्छे लगते ये बर्गर शर्गर, मेरे सामने नाम भी ना लिया कर। अम्मा हमारी पुराने ख्यालात की हैं, आप माइंड ना करना। शर्माकर अनीला बेगम ने जवादी को इतला दी और फिर दरख्वास्त की, नहीं मेरे पुरखों में तो कोई बर्गर की सनत से वाबस्ता नहीं था, मैंने क्यों बुरा मानना है। ए नसरीन, अब आप भी चुको और ये तुम्हारी बानों किधर रह गई है? आपा बानों को तो मैंने छत की सफाई पर लगाया है, गर्मी का मौसम है और सेहन छोटा है, कुछ बिस्तर रात में छत पर भी लगेंगे ना। आप लोग जाओ, हम तो इसी शहर के रहने वाले हैं, ये सब कई बार देख रखा है।
नसरीन इतना कहने के बाद फिर चूल्हे के पास जा बैठी और ये सब नहर की जानिब रवाना हुए। देख लो जी, ज़रा भी लिहाज हो, घर आए मेहमानों के साथ चलना भी गवारा नहीं है उन्हें। और एक तुम लोगों कोई रिश्तेदारी भी नहीं, लेकिन बात है सारी खलूस और मुरव्वत की। हाँ फूफो जी, ठीक कहती हैं आप, उनके घर में खलूस और मुरव्वत की बड़ी कमी है। उनकी लड़की तो मोहल्ले की किसी लड़की से दोस्ती नहीं रखती, किसी को कुछ समझती जो नहीं। लगे हाथों जवादी ने बानों की बुराई भी कर दी। अच्छा, हमारे ख़ानदान में बड़ी तारीफ़ें होती हैं उस लड़की की, जो भी इधर से होकर जाता है बानों की बड़ी ही तारीफ़ करता है। तुम बड़ी भोली हो पुप्पी, उनकी सियासत नहीं समझी, वो तो चाहते ही यही होंगे लड़की कहीं ठिकाने लगे ताकि उनके घर और सपूत तो महफूज हो जाएं। हाँ कहते तो तुम ठीक हो, ये बिरादरी वाले हैं, बड़े मिसने हैं। खैर मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली, निपट लूँगी एक एक से। वैसे नसरीन के घर से तो मुझे खुद बड़ी हमदर्दी है, पैसे के लिहाज से बड़े कमज़ोर हैं बेचारे। और फिर बानों ने दोपहर को बड़ी मेहनत से खाना बनाया था। लो जी, फिर वही मुर्ग की एक टांग। जवादी सख्त बदमज़ा हुआ। नहर के किनारे खूब रौनक थी, लड़के और बच्चे छपाछप नहर में छलांगे लगा रहे थे। अम्मा मैं भी नहाऊंगा, छोटा मचला था। हाँ हाँ क्यों नहीं, सभी नहाएंगे। बड़े की आवाज़ मारे जज्बात के फट सी गई थी। सब यानी कि सब? क्यों, मरने का इरादा है? जवादी ने घबराकर लड़कियों और अम्मा हजूर की जानिब देखते हुए कहा। मेरा मतलब सब लड़कों से है, सटपटाकर जवाब दिया गया। हाय, मैं भी कहूँ कि अपने पाईजान शहर आकर कितने मॉडर्न हो गए हैं। अनीला ने कहकहा लगाया। फिर भी तसल्ली ना हुई, देर तक हंसती और मज़ा लेती रही। नी बस कर, अंदर कर ले ये दंदियाँ, वो देख तो खबीस के बच्चे तुझे ही घूर रहे हैं। फूफी ने चपेट लगाने के बाद खबरदार किया। हमसे ज़्यादा सोहनी यहाँ कोई लग भी तो नहीं रही। हमने तो सुना था बड़े शहर की लड़कियाँ बड़ी फैशनी और सोहनी हैं, पर खेत सवा सारी की सारी बांदरियाँ ही लगती हैं। वैसे मुंडे सोने हैं। जमीला ने जवादी और शिबली की जानिब इशारा करके अनीला के कान में कहा। अनीला ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया, फिर दोनों शर्मा गईं। ये जवादी को क्या हो गया है, जाकर प्लेटें तैयार करवा रहा है। शिबली अनीला को छोड़ छाड़ उधर को लपका। हाँ हाँ, बाकी प्लेटों में मिर्चें नॉर्मल रखो, ये एक प्लेट बस। समझो ये गोलगप्पे मिर्चों से ही तैयार करने हैं। आगे अब शिबली को कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं थी। वाकई वही हुआ जैसा सोचा था। मिर्चों भरे मगर लजीज गोलगप्पे और फूफी के लालची बड़े साहबजादे नाक भी पहुँच रहे हैं, आंसू भी साफ कर रहे हैं, मगर प्लेट नहीं छोड़ रहे थे। मिर्चें इतनी तो नहीं हैं। सब उनकी हालत पर हैरान होने लगे। लगता है कुछ ज़्यादा नाजुक मिजाज हो। जवादी के तंज ने मजीद गैरत भड़काई। प्लेट खाली करके ही छोड़ी और उसके बाद जैसे चिरागों में रोशनी ही ना रही। पानी भी पिया, पापड़ भी चबाए, मगर मर्ज बढ़ता गया जूंजू दवा की। चलो घर चलो, जाकर चीनी खिलाती हूँ इसे। सारी तफरीक गारत हो चुकी थी। फूफी के वापसी के ऐलान ने उनके बाकी बच्चों को बदमज़ा कर दिया। वैसे यार जवादी, इस हुस्ने मजाक का मतलब मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आया। ये एक हीरो का विलन से इंतकाम है। दिल वालों की बातें हैं बस, और कुछ नहीं। मेरा बस चले तो इस मिर्चों की बोरी में बंद करके किसी करियाने वाले के हाथ फरोख्त कर दूँ। चलो वे, तुम दोनों इधर क्यों रुक गए? फूफी हजूर ने पुकारा। दोनों बातों का सिलसिला मौकूफ़ करके चल पड़े। घर करीब आने पर उन दोनों ने खुदा हाफिज कहा और अपने घर की राह ली। वे किधर थे तुम दोनों? ज़रा घर में नहीं बैठा जाता? हमारे साथ नहीं गए और गर्मी में पता नहीं किधर किधर मारे फिरते रहे हो। जवादी की अम्मा देखते ही शुरू हो गईं। दादी बड़े कमरे में तशरीफ़ फरमा थी। आवाज़ सुनकर वो भी बाहर आ गईं। आप गर्मी में क्यों निकल आईं? एसी की ठंडक में बैठिए, हम डांट खाने उधर ही आ जाते हैं, शिबली ने अदब से कहा। वे बेहदाए तो फ़ोन भी बंद कर रखे थे। उधर गाड़ी ख़राब हो गई, तुम लोगों को कितने फ़ोन किए, आकर ले जाओ। बाप तुम्हारा गड्डी ठीक कराने गया है। इब्राहिम को तो दोपहर में ही किसी दोस्त का फ़ोन आ गया था, वो उधर निकल गया। हम औरतें बड़ी मुश्किल से टैक्सी करके आई हैं। क्यों, क्या टैक्सी भी ख़राब थी? धक्का लगाना पड़ गया था या बगैर ड्राइवर के थी और ये सीट आपको संभालना पड़ गई थी? बकवास ना कर जवादी, अंदर आकर मेरे पैर दबा, बड़ा दर्द हो रहा है। और तू शिबली, ज़रा चाय तो बना हमारे लिए, बड़ा ही थक गए हैं। चाय पी लेंगी तो फिर सारी रात छत को तकते गुजरेगी, नींद नहीं आएगी। मैं तो कहता हूँ दादी, थोड़ी भंग मंगवा कर रखें। सच्ची कल ही मैंने उसकी अफादियत पर एक किताब पढ़ी है। वाह सुबहान अल्लाह। हाँ, कैसी बातें कर रहा है तू? कुछ पता भी है किसकी नस्ल से है तू? खबरदार जब ये नाम भी लिया तो। दादी को जवादी की बात पर सदमा भी हुआ, गुस्सा भी आया। वो नीलमा की बच्ची कहाँ रह गई है? नीलमा ज़ेबा के घर गई है। ज़ेबा की अम्मी और छोटी बहन आई हुई थी, उधर बड़ा इसरार कर रही थी, इसलिए नीलमा को भेज दिया मैंने उनके साथ। वापसी का क्या प्रोग्राम है मुझे बता दीजिएगा, मैं लेता आऊँगा। बात ज़ेबा के घर तक पहुँचने की हो और शिबली ये मौका गंवा दे। आ जाएगी कल शाम तक। वो गरीब भी कहाँ कहीं आती जाती है। बड़ी खुश थी ज़ेबा के यहाँ जाने से, वहाँ पर भी सारी लड़कियाँ ही हैं, दिल लग जाता है इसलिए नीलों का। जी हाँ, काफ़ी शरीफ घराना है, शिबली ने तारीफ़ की। रात के खाने से फारिग होकर शिबली की अम्मी ने घर जाने का इरादा जाहिर किया, लेकिन जवादी की अम्मी ने आज रात के लिए उन्हें और दादी को इधर ही रोक लिया।
ख़वातीन देर तक महफिल जमाए आज मिलने वाले रिश्तेदारों पर हर तरह का तबसरा फरमाती और उन्हें बोर करती रहीं। जब भी उठने का इरादा किया डपट कर यही कहा गया, वे बेहदायतों कभी घर वालों के साथ भी बैठ जाया करो, और उन्हें बिठाने के बाद फिर भूल ही जाती। मजाल है जो इन पूरे 3 घंटों में से उनसे कुछ पूछा हो या उन्हें कुछ बताया हो। आखिर दोनों वहीं कारपेट पर लेटे और सो गए। आँख सुबह दादी के जगाने पर खुली। वो नमाज के लिए जगा रही थी। उठ जाते हैं दादी, आप बिना पहली अजान के साथ ही जगाना शुरू कर देती हैं। हाँ, वो इसलिए कि तुम उठते तब हो जब आखिरी चंद मिनट बाकी रह जाते हैं। बात सच थी, सो खामोश होना पड़ा। उठ जा शिबली, ये तेरा नहीं तेरे ताया का घर है। यहाँ मेरी आवाज़ पर ना जागा तो सुबह सुबह जूते पड़ने शुरू हो जाएंगे। शुक्रिया दादी, आपकी इतला ने मुझे बरवक्त ख्वाब गफलत से जगा दिया। शिबली एकदम से उठ बैठा था। दरवाजे पर दस्तक देते ही पप्पू का हंसता मुस्कुराता चेहरा बरामद हुआ था। तुम्हें पता था हम आए हैं? जवादी ने जवाबी मुस्कुराहट उछाल कर पूछा। नहीं, मुख्तसर जवाब आया। अच्छा, फिर होंठों पर मुस्कुराहट क्यों? तो आपका ख्याल है मैं सिर्फ आपको देखकर मुस्कुराता हूँ? वाकई यही ख्याल था। अच्छा हुआ जो ये खुशफहमी भी दूर हो गई। जवादी उदास हो गया कि इस घर की दहलीज पर कदम रखते ही तुम्हें उदासी के दौरे क्यों पड़ने लगते हैं? मेरी मानो तो छोड़ दो इस घर का ख्याल, ये तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। बको मत। इतनी मिर्चें खिलाकर भी तसल्ली नहीं हुई। मिर्चें खाकर वो कौन सा वापस भाग गए हैं, यहीं जमे हुए हैं। खैर तो है, आज इतनी सवेरे सवेरे। खाला नसरीन किसी काम से सहन में आ निकली। उन्हें देखा तो ना सिर्फ ठिठकी बल्कि तेवर बताते थे। आज इतने बरसों में पहली बार उन्हें उनका आना कुछ अच्छा नहीं लगा। वो खाला इधर से गुजर रहे थे, सोचा आपके मेहमानों की खैरियत ही मालूम करते चलें। ना मेरे मेहमानों को क्या हुआ है जो खैरियत मालूम करने चले आए हो? मैं तो कल से तुम लोगों को चेक ही कर रही हूँ और परेशान हो रही हूँ। ओए, इधर तो ध्यान ही नहीं गया। आखिर ये खाला के ख़ास मेहमान हैं, उनकी राहों में तो हरदम आंखें बिछाएंगी, और हम कौन सा किराए के कातिल हैं जब मेहमानों पर नज़र रखे हुए हैं। जाओ शाबाश, घर जाओ अपने। इससे पहले कि वो पलट जाते फूफी भी कमरे से बरामद हो गई। उन्हें देखा तो बातें खिल गईं। तुम दोनों आए हो? सच्ची सारी रात तुम्हें ही याद करती रही हूँ। आओ आओ, खड़े क्यों हो? वो जी हम इधर बैठक तक ही आया करते हैं। वो कमरे में खींच रही थी। बताना पड़ा। चलो फिर उधर ही बैठो। अनिला बड़े मज़ेदार पराठे बना रही है, खाकर जाना। हम तो नाश्ता करके आए हैं। कोई बात नहीं, 2-4 नवाले हमारे साथ भी ले लेना। वैसे कल नहर पर बड़ा मज़ा आया। लड़कियां आज चिड़ियाघर जाने की जिद कर रही हैं, वरना मेरा प्रोग्राम तो आज फिर नहर पर जाने का था। अब खाला नसरीन की मौजूदगी में वो क्या जवाब देते कि वो तो नज़र उन पर ही जमाए जैसे एक एक हरकत का जायज़ा ले रही थी। मई का महीना, दिन के 12:30। ये जज्बा शौक ही था जो घर से निकाल लाया था, वरना और तो कोई बात हो ही नहीं सकती थी। बंदरों के पिंजरों से ज़रा आगे ही बढ़े थे कि आंखों के आगे नीले पीले तुरमुरे लहराने लगे। तब दोनों तो छाँव में आ बैठे पप्पू बेचारे को भी दबोच कर अपने पास बिठा लिया। बाकी सब आगे बढ़ गए। मैं भी उनके साथ जाऊंगा। पप्पू मुंह बसोरा। बेवकूफ़, बीमार पड़ जाओगे। नया खर्चा, नई मुसीबत। क्या कभी कुत्ते बिल्लियाँ कौवे चिड़ियाँ नहीं देखे जो इस गर्मी में उनके दीदार को मरे जा रहे हो? खबरदार हिलने की कोशिश ना करना, वरना बंदर के पिंजरे में कहीं भी बंद करवा दूंगा। धमकी कारआमद रही। पप्पू की जिद जाती रही। वो उन सब के पीछे जाने के बजाय उधर ही लगे झूले झूलने लगा। खाने का आगाज़ हुआ। जवादी ने जमीला के बनाए पुलाव की खूब तारीफ़ें की। शिबली इस दौरान अल्लाह ताला से उसको फराटेदार झूठ बोलने पर माफ़ कर देने की दरख्वास्त करता रहा। ऐसा खाना और इधर कभी नहीं बना। इधर चिड़ियाघर में बनेगा भी क्यों? शेर गैंडे पुलाव थोड़ा ही खाते हैं। पप्पू ने बोलकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया तो शिबली उसे सार्स दिखाने ले गया। हालांकि बच्चा बता रहा था उसे सार्स देखने से ज़्यादा खाना खाने में दिलचस्पी है। उसके जाते ही जवादी ने बानों की सुस्तियों और नालायकियों के कई किस्से घड़ घड़ कर सुना डाले। अच्छा, खाला तो कहती है मेरी बेटी बड़ी सुघड़ है। अनीला ने मुंह बनाकर नकल उतारी। कौन सी माँ है जो बेटी की तारीफ नहीं करेगी? वो भी करती हैं तो बुराई क्या है। लेकिन हम तो पड़ोस में रहते हैं। पकवान का लेन देन आम बात है, लेकिन उनके यहाँ से आज तक कोई स्वाद की चीज़ नहीं आई। और सुबह कह रही थी पुलाव मैं बना देती हूँ। शुक्र है मैंने बनवा नहीं लिया। ए बस चुप कर, ख्वामखा में क्यों बुराइयाँ कर रही है? अच्छी बच्ची है, बड़ा एहतराम करती है मेरा तो। फूफी का दिल नामुराद तो लगता था बानों पर अटक कर रह गया है। कदम कदम पर कोई ना कोई खूबी याद आ जाती। जबकि पप्पू सार्स देखकर वापस आया। जवादी बानों के फूहड़पन पर इतना बोल चुका था कि लिखा जाता तो एक 420 सफ़ात की किताब वजूद में आ सकती थी। फूफी काफ़ी बाइखलाक तो थी। दोनों लड़कों को खाना भी खुद निकाल कर दिया और बार बार दिया। आइसक्रीम, बोतलें, चिप्स, जूस बार बार सिर्फ उन्हीं दोनों को पेश किए गए। बच्चे चीखते कुरलाते रहे, परवाह नहीं की। खाने के बाद बकिया जानवरों से मुलाकात की गई। अब सूरज ढल रहा था, सो ये दोनों भी साथ साथ थे और लड़कियों को बता रहे थे। बड़े शहर की लड़कियां हाथी के दांत की तरह होती हैं। आपकी अम्मी तो बड़ी भोली हैं, आप इन्हें ये बात अच्छी तरह समझा दीजिएगा।
ہائے اللہ، ہم آپ کی یہ رائے اپنی امی تک پہنچائیں۔ توبہ توبہ، آپ بھی نا بڑے شریر ہیں۔ پتہ نہیں کیوں وہ خامخواہ شرما گئی تھی۔ جب واپسی ہوئی مغرب کی اذانیں ہو رہی تھی اور خالہ نسرین انہیں گھور رہی تھی۔ گلی میں آتے ہی جوادی شبلی سے بولا، دیکھا تم نے کتنا بدل گئی ہیں خالہ، اب انہیں ہمارا آنا جانا بھی اچھا نہیں لگتا۔ میرا جی چاہتا ہی سمجھت کے بچے کو مکھی بنا کر دیوار سے چپکا دوں۔ جی ہاں، وہ بھی عین نکاح کے ٹائم۔ سب کچھ تیار ہے، تقریب اپنے جوبن پر ہے اور روح رواں غائب، ٹھنڈیا پڑ چکی ہے۔ آئے ہائے، کوئی لڑکے کو تو لاؤ، مگر یہ کوئی نہیں دیکھ رہا کہ ایک مکھی بلکہ مکھا شیروانی پہنے دیوار سے چپکا 8 آنسو بہا رہا ہے۔ اپنے نصیبوں کو کوس کوس کے اس کا گلا بیٹھ چکا ہے۔ بس ادھر تو فیصلہ ہی ہوا ہے، عزت بچانے کے لیے، جگہ سائی سے بچنے کے لیے کوئی دوسرا لڑکا ڈھونڈو، اور یہ دوسرا لڑکا جناب جوادی سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے۔ سو جھٹ سے جوادی صاحب کو پکڑ کر منہ ہاتھ دھلا کر نئے کپڑے پہنا کر مولوی صاحب کے روبرو بٹھا دیا ہے، اور یوں ڈرامائی طور پر مسز شہربانو جواد بن گئی ہیں۔ بکواس بند کرو، میں بڑا پریشان ہوں، کوئی حل سوچو۔ بھلا یہ امجد بانو کے قابل ہے؟ امجد ہی کیا، جواد کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی لڑکا بانو کے قابل نہیں ہے۔ میں خالہ نسرین کو اتنی ظالم ماں نہیں سمجھتا تھا۔ اچھا، گھر کا گیٹ آ گیا ہے، تم والدین کی عدالت میں پہنچنے کی تیاری کرو، میں گھر چلتا ہوں۔ نہیں نہیں شبلی، تم بھی ادھر ہی رک جاؤ، پتہ ہے راتوں کو نیند ہی نہیں آتی، اگر نیند آ جائے تو پھر خواب ایسے خوفناک آتے ہیں کہ نیند آنے پر ہی پچھتاوا ہونے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں رک جاتا ہوں، اور یہ بھی بتا دیتا ہوں، امجد کے خوابوں کو نہ کبھی پورا ہونا ہے نہ ہوں گے۔ ارے میں تو عین نکاح کے وقت اس کی ایک عدد بیوی اور اس کے ساتھ 2 بچے بھی پیش کر دوں گا۔ ارے ہاں، اس بات کا تو مجھے خیال ہی نہیں آیا۔ ہمارے جوش کی جوادی اس کے گلے لگ گیا۔ مگر مجھے تو کب سے یہ خیال آیا ہوا ہے، اسی لیے تو مطمئن ہوں، مجھے کہہ لینے دو، تسی گریٹ ہو۔ وہ فقیرنی جو اکثر ہمارے اسکول کے گیٹ کے قریب مانگنے بیٹھی ہوتی ہے، ارے وہی جس سے ایک بار ہم نے 100 روپیہ ادھار بھی لیا تھا۔ سیدھی طرح بولنا، تو چھینوں کی بات کر رہا ہے۔ اس کے سامنے اب چھینوں نہ کہنا، یاد نہیں بتایا تو تھا اس نے نام بدل لیا ہے، اب وہ کترینہ کیف کہلاتی ہے۔ تو میں سوچ رہا ہوں امجد کی فرضی بیوی بنانے کے لیے وہ بہترین ہے۔ ارے ہاں یار، وہ ہمیں انکار نہیں کرے گی۔ جوادی کا دکھ اب کافی حد تک دور ہو چکا تھا۔ گھر آئے تو نیلما کچن میں کھڑی کچھ بنا رہی تھی۔ دادی اور شبلی کی امی کے بارے میں پتہ چلا اپنے گھر جا چکی ہیں۔ ویسے دادی شاید صبح کو دوبارہ چکر لگائیں۔ امی کدھر ہیں؟ جوادی نے دھیرے سے پوچھا۔ ان کی دوست سلمہ آنٹی آئی ہوئی ہیں، رات کا کھانا کھا کر جائیں گی، کچھ سودا منگوانا تھا، کدھر تھے آپ؟ یا اللہ شکر، سلمہ آنٹی اچھے وقت پہ آئی ہیں، لاؤ لسٹ بنا کر دو کیا کیا منگوانا ہے۔ نیلا، میں نے سنا تھا تم زیبا کے ہاں گئی تھی۔ شبلی جوادی کے ساتھ قدم نہیں بڑھا سکا تو جوادی کو بھی رکنا پڑا۔ جی بالکل گئی تھی، بڑا مزہ آیا، بڑا اچھا ٹائم گزرا۔ آؤ بھلا وہ کس طرح؟ دلچسپی عروج پر تھی۔ بھائی 3 لڑکیاں ہیں اس گھر میں، ہم نے مزے مزے کی ڈشز ٹرائی کی، ہنسی مذاق بھی خوب رہا، سچی پتہ بھی نہیں چلا ٹائم گزر گیا۔ وہ تو نانا ماموں مجھے لینے آ گئے تھے، ورنہ میں تو مزید 1-2 روز بعد آتی۔ کچھ کہتی تھی زیبا؟ ہاں کیوں نہیں، کہہ رہی تھی پھر دوبارہ بھی آ کر ٹھہرنا۔ نیلما نے اپنی سادگی میں جو بتایا، جوادی شبلی کو دیکھ کر ہنس پڑا۔ اور ہاں شبلی بھائی، ایک کام آپ کے لیے بھی بتایا ہے۔ وہ کیا؟ شبلی پورے کا پورا کان بن گیا۔ کہہ رہی تھی دادی کے انگوری دوپٹے پر جو کروشے کی بیل ہے وہ انہیں بے حد پسند ہے، وہ لا کر نیلما کو دے دیں، جب دوبارہ نیلما ہماری طرف آئے گی تو میں اس سے لے لوں گی۔ یہ نہیں کہا کہ دوپٹہ میرے گھر آ کر مجھے دے جائیں۔ نہیں یہ تو نہیں کہا، نیلما نے سوچ کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بتایا۔ اس کا فون آئے تو کہہ دینا دوپٹہ پرانا اور بدرنگ ہو چکا تھا، دادی نے کترینہ کیف کو دے دیا ہے۔ اور یہ کہہ کر جوادی کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل گیا۔ کیا کہا بھائی، کترینہ کیف کو؟ بتائیں کیا واقعی؟ نیلما کی حیرت میں ڈوبی آواز آ رہی تھی، لیکن وہ رکے نہیں۔ ابھی سویر کے صرف 10 ہی بجے تھے، دونوں خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے کہ انیلا اور جمیلہ کا ان کے ہاں نزول ہوا۔ نیلما اور امی سے بڑے اتفاق سے ملی اور وہ حلوہ پیش کیا جو بقول ان کے اپنے ہاتھوں سے بنا کر لائی تھی۔ اچھا پیٹھے کا حلوہ ہے؟ امی جی نے خوشی کا اظہار کیا، پھر خود فوراً ہی فرمایا، اگر اس میں سوجی بھون کر شامل کر دی جائے تو اور بھی اچھا بنتا ہے۔ مجھے لگتا ہے تم نے سوجی نہیں ڈالی۔ دونوں ہاں یا نہ میں جواب نہیں دے سکیں کہ انہیں واقعی علم نہیں تھا خالہ نسرین نے سوجی ڈالی ہے یا نہیں۔ وہ جی آپ کے گھر میں شاید 2 لڑکے رہتے ہیں، نام تو ہمیں معلوم نہیں، وہ خالہ بلا رہی تھی انہیں۔ اچھا نسرین نے بلایا ہے؟ نیلما جا کر دیکھو سو رہے ہیں یا دنیا پر احسان کرنے اٹھ گئے ہیں۔ پھر لڑکیاں سے بولیں، نسرین نے تمہیں کیوں بھیج دیا، اپنی چھوٹی کو بھیج دیتی یا دیوار سے ہی کہہ دیتی۔ وہ اصل میں پپو بڑی تعریف کر رہا تھا آپ لوگوں کی، اسی لیے ہم چلے آئے۔ چلو اچھا کیا، امی محترمہ کو لڑکیاں کچھ بھائی نہیں تھی۔ وہ دونوں تو ابھی سو رہے ہیں، جب اٹھیں گے میں انہیں خالہ کی طرف بھیج دوں گی۔ اور یہ بانو کہاں ہے؟ آج کل لگتا ہے زیادہ مصروف ہو گئی ہے۔ نہیں نہیں، مصروفیت کیسی، سارا گھر تو آتے ہی ہم بہنوں نے سنبھال لیا تھا، بس وہ ویسے کمرے سے کم ہی نکلتی ہے۔ ہمیں تو حیرت ہوئی کہ آپ سے دوستی ہے،
आप उसे याद कर रही हैं? हम तो समझे थे बड़ी मगरूर है, किसी से भी बात नहीं करती शायद। हाय बानो, और मगरूर? वो तो बड़ी ही स्वीट लड़की है। नीलिमा उसकी बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकी। आहो, जहाँ मतलब दिखाई देता हो वहाँ तो शहद टपकाना ही होता है, बड़े माने खैज अंदाज में कहा गया था। नीलिमा तो नोट नहीं कर सकी, लेकिन जवादी की वालदा मोहतरमा तो आखिर को हेड मास्टरनी साहिबा थी। दाल में काला है कैसे ना पहचानती, लेकिन बोली कुछ नहीं। बज़ाहिर अखबार की जाने मतवज्जा हो गई। वो मेरी अम्मी भी आना चाहती थी आपके घर, अनीला ने मतवज्जा किया। चमचम आओ, हमारे घर के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। अच्छा तो फिर हम चलते हैं, आपके बेटे जब नाश्ता वगैरह कर लें तो मेरी अम्मी का पैगाम दे दीजिएगा। नीलिमा कान खोल के सुन ले, कोई पैगाम देने की ज़रूरत नहीं, मैं लिख कर देने को तैयार हूँ। ये अपना ही पैगाम लेकर आई थी। आए हाय, ये बेगैरत नाम डबोएंगे बाप दादा का, पता नहीं क्या क्या बकवास मारी है लड़कियों के सामने, दीवानी सी हुई जा रही हैं। 11 बजे जब दोनों नाश्ता कर रहे थे, दादी और नाना मामू चले आए। वे शिबली, तेरी माँ घर में अकेली है, नाश्ता ख़त्म हो जाए तो घर चले जाना। सवाल ये पैदा होता है दादी कि उन्हें आखिर भरी परी दुनिया में अकेला छोड़ा क्यों गया है। अच्छे भले आप दोनों घर में मौजूद थे, इधर क्यों चले आए? आज मेरा मसाले वाले टिंडे खाने को जी चाह रहा है, और उठ क्यारी में टिंडों की बेल कैसी हरी भरी है, बस वही लेने आई हूँ। तोबा, क्या शौक है, अब इस आग बरसाती गर्मी में बैठकर टिंडे तोड़ेंगी? ना मैं क्यों तोड़ूंगी, तुम दोनों को शर्म ना आएगी? जवान जहान होकर खुद तो इधर बैठे और बूढ़ी दादी धूप में जल रही है। चलो जी, बात ही ख़त्म, आज हमें ये कहने दें दादी, तुसी ग्रेट हो, दोनों ने मिलकर कहा था। नीलिमा ने भी इस बात में सर हिलाया और हंसने लगी। अस्सलामुअलैकुम। खुले गेट से एक 12-13 साल का अजनबी लड़का दाखिल हुआ। वो अजनबी घर वालों के लिए था। ये दोनों तो अनीला जमीला के भाई को अच्छी तरह पहचानते थे। मेरी अम्मी को कुछ काम था जी, आप दोनों से याद कर रही हैं आपको। इधर आओ, पहले ये बता किसका पुत्र है तू? दादी ने कड़क कर बुलाया था। इंसान का ही बच्चा है दादी, जवादी ने इतला दी जो सुनी नहीं गई। मैं अपने बाप का बेटा हूँ जी। बच्चा भी घबराया। अच्छा, वाकई? शिबली की पुरमुसरत आवाज़ गूंजी, जिसे नाना मामू ने मजीद गुलफशानी से रोक दिया। तेरी माँ इन्हें क्यों याद कर रही है? ये क्या गली में दुपट्टे रंगते हैं या नाले परांदे बेचते हैं? दादी, दोनों ने एतराज़ किया। चुप वे, ये सारी जनानियाँ तुम्हें ही क्यों याद करती रहती हैं? हमें क्या पता, ये तो आप याद करने वालियों से पूछें। शिबली ने शाने उचकाए, जबकि जवादी ने मजीद इजाफा किया। कसम खाकर बताएं, कभी हमने भी किसी जनानी को याद किया है? ये है कौन, मोहल्ले में नया आया है क्या? दादी की नज़रें बच्चे का जायज़ा ले रही थी। अम्मा कहती हैं अब शादी करवा कर ही इस शहर से वापसी होगी। हाय आय हाय, दुरफिटे मुँह। दादी तो उछल पड़ी, जबकि ये समझ रहे थे किसकी शादी का इरादा है। इसीलिए जवादी का चेहरा एकदम से सुर्ख हो गया था। शिबली बच्चे को वापस दौड़ा ना देता तो ऐन मुमकिन था जवादी एक हाथ ही जड़ देता। देखो भाई, दुनिया के तमाशे, बच्चा बता रहा है माँ इस शहर में शादी करने आई है और शादी करवा कर ही वापस जाएगी। बुलाया जा रहा है हमारे होनहार पोतों को, यानी नज़र इन पर है, और ये अकल के अंधे जिस पर वो उंगली रखेगी वही निकाह पढ़वाने पर तैयार हो जाएगा। मैं कह देती हूँ, लिहाज नहीं करूँगी, 100 जूते लगाऊंगी तुम में से जो इससे शादी करेगा, उसे भी और साथ उस मीसनी को भी। जाहिर है जी, जब पोते की बीवी बन जाएगी फिर तो आपकी जूतियों की मार उसके लिए ऐन सादत बल्कि बाइस इफ्तिखार ही होगी। शिबली ने संजीदगी से कहा था। मुझे तो तेरी ही नीयत ख़राब लग रही है। नाना मामू की गहरी जांचती निगाह उस पर थी। अल्लाह को मानिए मामू, क्यों बहतान लगा रहे हैं? फिर क्या जवादी? उन्होंने उंगली उठाई। जवादी ने तो नन बनने का फ़ैसला कर लिया है, वो अब सारी उम्र शादी नहीं करेगा। नन? बात तो सुनो, अब कहाँ चल पड़े हो? टिंडे तो उतार दो मुझे। जहांगीर का मकबरा था और फूफी जी की पूरी फैमिली के साथ ये दोनों थे। चाट खाने के बाद सब बहुत खुश थे, इसीलिए फ़ैसला हुआ था कि एक एक प्लेट मज़ीद खरीदी जाए। मैं तो आइसक्रीम भी लूँगा, मेरे लिए नान कबाब पकड़, मैं तो थक गई हूँ। मजाल है जो किसी ने इस इमारत में कोई दिलचस्पी ली हो। वो मतवज्जा थे तो सिर्फ खाने पीने की दुकानों की तरफ। हाँ, कुछ देर बाद कुछ गोरियाँ भी उन्हें मुतासिर करने लगी थीं, जो बेचारी इमारत की एक एक ईंट से तारीख खंगालते नहीं थक रही थीं। मैं क्या जी, सुना है उन गोरियों को पाकिस्तानी लड़के बड़े अच्छे लगते हैं। अमजद करीब आकर सुनी सुनाई की तस्दीक करवाना चाह रहा था। पाकिस्तानी लड़के? अरे हाँ हाँ बिल्कुल, बस एक बात इन्हें नापसंद है पाकिस्तानियों की, कहती हैं बुज़दिल होते हैं, दूर दूर से ही देखते हैं, छूने की कोशिश नहीं करते। अच्छा जी, ओह ये तो बड़ी बेइज्जती करवा दी पाकिस्तानी लड़कों ने। अमजद साहब जोश के आलम में आगे बढ़े, आगे और आगे, और जब ये वहाँ पहुँचे फ़राइज़ अदा करने की आरज़ू में चूर एक पुलिस वाला जनाब अमजद साहब की ठुकाई में मसरूफ़ था। गोरियाँ शायद कुछ देर पहले खफा हुई होंगी, अब तो फिर एक बार उनकी दिलचस्पी एक एक ईंट में थी। मार खाने के बाद अमजद साहब ने उस मार का मुआवजा पुलिस वाले साहब को पेश किया और बज़ाहिर बेनियाज बने दूसरे रुख पर चल दिए। चल देखें तो कितने डेंट पड़े हैं, शिबली ने कहा और दोनों उसके पीछे लपके।
वापसी शाम को ही। सारा दिन खूब खाया पिया गया। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आज भूपी बार बार हम तो खाते पीते घराने के लोग हैं की तकरार करती रही थी। उन्हें बानों के घर के दरवाजे पर छोड़कर दोनों अपने घर की जाने बढ़े थे। वैसे आज अमजद की खातिर अच्छी हुई है। जवादी के दिल को ठंड पड़ी थी। हाँ, पुलिस वाले के हाथ का पूरा निशान पड़ गया है चेहरे पर। घर में दाखिल हुए थे। बरामदे में दादी, अम्मी और नाना मामू के साथ साथ खाला नसरीन को भी खड़ा पाया और सबसे पहले उन्हें मुखातिब भी खाला नसरीन ने ही किया। अल्फाज कुछ यूँ थे, हाँ जी, घुमा फिरा लाए हो अपने ससुरालियों को। हमारे कहाँ से ससुरालियाँ हो गए, क्यों मजाक करती हैं खाला। दोनों खिसियाने हो गए। नहीं, परेशान क्यों होते हो, इधर तो तैयारियाँ हैं। कैसी तैयारियाँ, कैसी होती हैं तैयारियाँ। हाय आपा, कितना समझाया मैंने इन दोनों को, ना इतनी मोहब्बतें बढ़ाओ कि मेरी तो बिरादरी के लोग हैं, खूब जानती हूँ उन्हें। कहाँ वो, कहाँ आपका घराना। मगर इन लड़कों की मत मारी गई है, एक नहीं सुनी मेरी। खाला की शिकायतें जारी थीं। हम तो आपके मेहमान समझकर इज्जत कर रहे हैं। मैंने कहा तो था अपने मेहमानों की मैं खुद ही इज्जत कर लूँगी, पर ना जी, ये आजकल के बड़े पता नहीं मक्खियों वाली खासियत क्यों रखते हैं। ना वो लड़कियां भला किसी तरह भी तुम्हारे काबिल हैं। दोनों ने पुरजोर अंदाज में नफ़ी में सर हिलाया। देखा अब कैसे मुकर रहे हैं। और उधर वो आपा सुबह मुझे कहकर गई थी, जिस मकसद के लिए लाहौर आई थी पूरा हो गया है। मेरी लड़कियों को बड़े शहर में शादी करने का शौक था। देख लो, आते ही दो कैसे उम्दा लड़के मिले हैं। बस बात पक्की ही समझो। और तुम हो कि छुपा रहे हो हमसे। क्या वो लड़कियों की शादी के लिए आई थी, लड़के अमजद के लिए नहीं? जवादी ने मरी मरी आवाज़ में पूछा था कि अमजद पर ढाए जुल्म याद आकर क़यामत ढा गए थे ना। अमजद भला इस जोगा है बेचारा। आपा कहती है पहले लड़कियां ब्याहोंगे और मिल गए तुम जैसे काट के उल्लू। ठीक कहती हैं आप, बिल्कुल ठीक फरमाती हैं आप, हमें एक एक लफ्ज़ से इत्तफाक है। जवादी ने कुर्सी पर बैठे पेचोताब खाते नाना मामू के पैर से जूती उतारी और दादी के हजूर पेश करने के बाद फर्श पर उकड़ूं बैठ गया। कुछ ऐसा ही शिबली ने भी किया कि खुद उनके ख्याल में आज वो जूतियाँ खाना उनका हक बनता था। खाला ने जो कुछ बयान किया था उसके बाद दुनिया में भला उनसे बड़ा चुगत कौन हो सकता था। जमीला अनीला की वालदा जब किसी ज़रूरी बात के बहाने उधर चली आईं तो वह दादी से ताड़ ताड़ जूतियाँ खाने में मसरूफ़ थे। बस वो वहीं से पलट गईं। सुबह अपने शहर गईं और मुड़कर नहीं आईं। ख़त्म शुद्ध। जी तो डियर लिसनर्स, इस सीरीज़ की एक और कहानी अपने इख्तिताम को पहुँची। इंशाल्लाह जल्द नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर होंगी। उम्मीद है आप सब इस कहानी को एंजॉय कर रहे होंगे। कहानी के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।